welcome to Physics with Vinay Uppal. I am Vinay Uppal and I'm back. This is season 3, episode number 1 from the Rare series. And in this episode, I'm going to be talking about a concept जो JEE Advanced 2022 में आया था, based on compressible gas flow, जो syllabus में technically नहीं है, because syllabus में clearly लिखा है Bernoulli's equation, which is by definition for incompressible fluid flow. तो मतलब in my opinion this is a little wrong because then it tests the knowledge of the student rather than the application. कि student को पता है क्या ये concept कि नहीं पता है. मतलब concept तो difficult नहीं है. Concept is not difficult at all. मतलब मैं आज पढ़ा दूंगा तुमको पूरा समझ में भी आ जाएगा, पर तुम बताओ तो सही क्या पढ़ाना है. मैं I'm telling you, तुम लिख के ले लो. There is not one student on this planet that I cannot teach any concept in physics to. तुम बोलो क्या पढ़ाना है, सब पढ़ा दूंगा, पूरा समझ में भी आ जाएगा, पर बताओ तो सही. आइंस्टाइन का रिलेटिविटी पढ़ाना है वो भी पढ़ा दूंगा, समझ में भी आ जाएगा. But stick to the syllabus. I'm talking to the paper setters. Anyway, no point in ranting. आज के एपिसोड में I'm going to be talking about that concept. I'm going to teach you that concept from basics and you'll master the concept at the end of the lecture as well. अगर इस concept पे based कोई भी question आया in the future JEE years, तो you will be able to do it. The free marks. So just let me outline what I'm going to do today. सबसे पहले तो I'll explain the concept of compressible gas flow, कौन से equations use होंगे. फिर JEE 2022 का question थोड़ा analyze करेंगे. उसके बाद 3 एप्लीकेशंस भी कराऊंगा, कहाँ पर यूज होता है. एक एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में, एक रॉकेट प्रपोल्शन में और एक इलेक्ट्रिकल फैन में. तो ये सब तीनों एप्लीकेशंस कराऊंगा. थोड़े डिफरेंट, यू कैन से डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. तो तुमको एक वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आ जाएगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का एक्सपोजर हो जाएगा. बेसिकली एट द एंड ऑफ इट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस कॉन्सेप्ट. सो आई होप यू आर रेडी टू लर्न दिस न्यू कॉन्सेप्ट एंड मास्टर इट. Let's go. So let's talk about compressible gas flows. Bernoulli's equation जो होता है that is derived for incompressible flow, जहाँ पे liquid is not compressible but gas obviously can get compressed. तो देखते हैं. तो सबसे पहले equation of continuity देखते हैं. So suppose I have this is a streamline बोलो, tube of streamline. तो let's say this area is A1, this area is A2. यहाँ से the fluid is flowing in at velocity V1, यहाँ से V2. तो normally incompressible fluids के लिए V से कि जितना volume अंदर flow कर रहा है per unit time उतना ही बाहर निकलेगा. compressible नहीं है. However, compressible के लिए that is not valid. volume तो change हो सकता है. We are going to assume steady state. We are talking about steady state इस लेक्चर में. तो steady state में जितना मास अंदर जाएगा उतना मास बाहर आएगा, जस्ट मास कंजर्वेशन. सो कितना मास अंदर जाएगा, dt टाइम में कितना वॉल्यूम कवर करेगा v1 dt, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा v1 dt, तो कितना वॉल्यूम एंटर करेगा एरिया इंटू v1 dt इंटू डेंसिटी करूंगा तो मास आ जाएगा. सो कैन आई से ρ1 इंटू a1 इंटू v1 dt. A1 into V1 dt is the infinitesimal volume entering multiplied by density is the infinitesimal mass entering in dt time. That should also be equal to the mass leaving, which will simply be ρ2 A2 V2 dt. dt cancel करो. Basically, I have my equation of continuity. ठीक है, जो normally equation of continuity पढ़ते incompressible fluids के लिए, that is just area into velocity equate करते input पे and output पे. यहाँ पे just density से multiply कर दिया दोनों जगह. Density can also vary because compressible है ना. Alright, so this is my equation of continuity. Next, let's talk about Bernoulli's equation को कैसे modify किया जा सकता है. तो Bernoulli's equation हम लोग क्या लिखते हैं? Along a streamline we write pressure plus rho gh plus half rho v squared is a constant. This is Bernoulli's equation. Huh? So what does this mean exactly? Physically, what is this? Can you see rho gh is nothing but the gravitational potential energy per unit volume. कोई dm mass का potential energy कितना होगा? dm into g into h divided by volume करूँगा divided by dv. तो dm by dv कितना हो जाएगा? density. Similarly, kinetic energy कितना हो जाएगा? dm mass का half dm into v squared divided by volume करूँगा dv. तो कितना हो जाएगा? density. तो all of these are energies per unit volume. And that makes sense. जितना energy per unit volume enter कर रहा है उतना energy per unit volume exit कर रहा है. That is just energy conservation. However,
Now because volume can change, this does not is no longer valid for compressible fluids. Instead, अब तुमको realize होना चाहिए, we can talk about instead of energy per unit volume, we can talk about energy per unit mass, because जितना mass अंदर जा रहा है उतना mass बाहर आ रहा है, वो तो constant है. So if I just divide this by density everywhere, ये per unit volume है ना, density से divide करूँगा तो per unit mass आ जाएगा. So let me just divide by density. This is basically, this quantity is energy per unit mass entering the this section. Now, for gases, in addition to these three quantities, so what is this? V square by 2 is kinetic energy per unit volume, per unit mass rather. GH is potential energy per unit mass. And P by rho is, you can say it is pressure energy, क्योंकि P into dV is the work done, तो P dV is the energy supplied, ऐसा बोल सकते हो, by the pressure. So P is energy per unit volume, correct? तो P by rho is energy per unit mass. तो pressure energy per unit mass, potential energy per unit mass, kinetic energy per unit mass. Total energy per unit mass is a constant along a streamline. This is a statement of Bernoulli's equation. However, for gases, we have an additional energy, the internal energy. बस वो add करना है अपने को. तो internal energy again per unit mass करना है. So internal energy वैसे तो क्या होता है? NCVT. CV is अपना molar heat capacity at constant volume. अब divide by mass करना है मुझे. तो per unit mass करूँगा. N moles का mass मतलब N times molar mass. Capital M is molar mass. तो देखो कितना आ जाएगा? CVT by M. That's all we have to add here. तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? For gas flows के लिए I'll have P by rho plus GH plus V squared by 2 plus CVT by M. This is the energy per unit mass for a gas. बस एक internal energy का term add कर दिया. Now if we assume an adiabatic flow जिसमें कोई heat enter नहीं कर रहा है externally, तो I can just write this is a constant. एनर्जी कंजर्वेशन ही है और क्या. तो अगर कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, गैस फ्लो, यहाँ से गैस फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ से कोई एक्सटर्नल हीट कुछ सप्लाई नहीं हो रहा या कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है एक्सटर्नली, तो जितना एनर्जी अंदर जा रहा है उतना एनर्जी बाहर आ रहा है. सिंपल. तो दिस इज माई statement. So this is you can say it's a modified version of Bernoulli's equation. We don't call it Bernoulli, but you can say it's a modified version of Bernoulli's equation for compressible fluids. Gases in particular have this internal energy वाला term. तो ये दो इक्वेशन है मेरे पास. इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई और रादर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इस चीज को, बिकॉज इफ यू नोटिस P by rho I have आइडियल गैस के लिए I have रिलेशन. I have P by rho is RT by M, correct? P is rho RT by M. तो ये RT by M लिख दिया. R plus CV क्या बन गया? CP, molar heat capacity at constant pressure. तो क्या बन जाएगा मेरे पास? CPT by M plus GH plus V squared by 2 is a constant. ठीक है. तो both are equivalent forms. तो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन. दीज टू इक्वेशंस आर बेसिकली द कंप्रेसिबल वर्जन ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स जो तुम लोग पढ़ते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में. जो इनकम्प्रेसिबल का इक्वेशन कंटिन्यूटी है, बर्नौली पढ़ते हो और सब जगह लगाते हो सारे क्वेश्चंस में. वैसे ही ये दो चीज़ें करना है, ये और ये. जस्ट रिमेंबर हियर वी अज्यूम देयर इज नो एनर्जी फ्लोइंग इनटू दिस ट्यूब ऑफ गैस. अगर वो होता तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता, वो चेंज होता ना एनर्जी पर यूनिट मास. तो वो अपन देखते हैं, वो जरा नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ, ये रब करने के बाद. तो you guys can just take a screenshot or write it down, whatever, then we'll go ahead. Now let's talk about अगर प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है, मतलब अगर हीट वगैरह कुछ फ्लो हो रहा है या गैस को कुछ एनर्जी एक्सटर्नल सप्लाई से मिल रहा है, तो लेट्स से दैट द मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम dm by dt जो है, कितना मास फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, वो तो अपने को ऑलरेडी पता है डेंसिटी एरिया वगैरह के टर्म्स में.
यही था ना मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंटरिंग एंड लीविंग, ठीक है। ये मेरा एरिया A1, यहाँ पे डेंसिटी ρ1 है गैस का, यहाँ पे ρ2 है, ये A2 है, V2 से निकल रहा है, V1 से एंटर कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर इसमें कुछ हीट भी सप्लाई हो रहा है एट अ रेट ऑफ dQ/dt, क्वेश्चन में टेल यू कि इतना पावर सप्लाई हो रहा है, इतना वॉट्स का मतलब इतना हीट पर यूनिट टाइम सप्लाई हो रहा है। सो देन कैन आई राइट dQ/dt इज कितना एनर्जी से निकलेगा पर यूनिट टाइम माइनस कितना एनर्जी से एंटर किया। जो चेंज इन एनर्जी है पर यूनिट टाइम वही तो वो एक्सटर्नल हीट सप्लाइड है कि नहीं। जस्ट वंस अगेन जस्ट यू कैन से एनर्जी कंजर्वेशन अगेन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दो। सो dQ/dt इज कैन आई राइट कितना एनर्जी पर यूनिट मास निकल रहा है, कैन आई राइट इट एज CPT/m, वो सेकेंड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, CPT/m प्लस GH। सो ये T2 बन जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, ये हाइट इसका लेट से H2 है, प्लस V2 स्क्वायर्ड बाई 2, दिस इज एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज लीविंग, माइनस कितना एंटर कर रहा है, टेम्परेचर T1 पे एंटर कर रहा है, डिवाइड बाय m मोलर मास प्लस GH1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2। यही था ना मेरा एनर्जी पर यूनिट मास जो हम लोगों ने कांस्टेंट किया था along a streamline. This is all energy per unit mass. तो we are going to have to multiply this by dm/dt, जिसका वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन बाद में करेंगे भी, जो इलेक्ट्रिकल फैन वाला जो लास्ट एप्लीकेशन है वो इस बेसिस पे रहेगा, जहाँ पे प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है बट देयर इज सम पावर बीइंग सप्लाइड, ठीक है। सो दिस इज लाइक द रेट ऑफ एनर्जी बीइंग सप्लाइड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास मल्टीप्लाइड बाय द मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, सिंपल है, ठीक है। तो ये लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी लुक एट द JEE एप्लीकेशन फर्स्ट। नाउ लेट्स डू द JEE 2022 वाला क्वेश्चन, उसको एनालाइज करते हैं। तो वी हैव सम गैस फ्लोइंग एंड उसका γ2 दिया था। सो गैस फ्लोइंग थ्रू दिस चिमनी, आई थिंक चिमनी वाज अ वर्ड यूज्ड। तो एंट्री पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, प्रेशर P1 पे गैस एंटर कर रहा है, टेम्परेचर T1 से और डेंसिटी ρ1। तो ये सब वैल्यूज दिए थे एक्चुअली क्वेश्चन पे। आई एम जस्ट गोना एनालाइज द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, यू शुड सॉल्व इट ऑन योर ओन, गेट द फाइनल आंसर, तो ही खुद को वो सेटिस्फैक्शन होगा ऑफ सॉल्विंग अ प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चन। सो आई एम जस्ट यूजिंग वेरिएबल्स हियर। तो ये एरिया प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी से एंटर कर रहा है एंड एग्जिट पे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया था, टेम्परेचर ऑफ एग्जिटिंग द गैस दैट वाज एग्जिटिंग उसका टेम्परेचर T2 दिया था, ठीक है। एंड द हाइट वाज आस्क्ड अमॉन्ग अदर थिंग्स, हाइट वाज आस्क्ड। तो मैं हाइट की बात करता हूँ, बाकी सब कैलकुलेशन तो इजी, और हाइट के कैलकुलेशन में वो सब निकल भी जाएंगे बाकी क्वांटिटीज। एंड अल्फा वाज द मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो अल्फा वाज गिवन टू अस, सो ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज वर गिवन, व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर वर गिवन। हाइट इज आस्क्ड, हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट कौन से इक्वेशन में आएगा, ये इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लूंगा, कोई एक फॉर्म। तो प्रेशर डेंसिटी दिया गया है इनिशियली, तो लेट मी सिलेक्ट दिस फॉर्म। सो फॉर हाइट आई एम गोइंग टू राइट यहाँ पे नीचे और ऊपर आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस क्वांटिटी एनर्जी पर यूनिट मास। सो कैन आई राइट, अच्छा एडियाबैटिक भी दिया गया था क्वेश्चन में, द प्रोसेस एज द गैसेस ट्रैवल अपवर्ड्स इज एडियाबैटिक, वो भी दिया था क्वेश्चन में, दैट इज व्हाई आई कैन यूज दिस, रिमेंबर। ऑलराइट, सो आई कैन राइट P1 डिवाइडेड बाय ρ1 प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या है GH। तो इनिशियली तो हाइट 0 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस लाइन बेस पे 0 मान लेते हैं, तो 0 प्लस फिर क्या है V स्क्वायर्ड बाई 2। तो यहाँ पे स्पीड पता नहीं मुझे, मान लेता हूँ यहाँ पे स्पीड V1 मानता हूँ, ऊपर स्पीड V2 मानता हूँ, रिमेंबर दे आर अननोन, प्लस सो प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस CVT/m, ठीक है, शुड बी इक्वल टू T मतलब T1। अच्छा CV वैसे कितना होगा, गामा पता है ना मुझे, गामा 2 दिया हुआ है, तो CV वुड बी इक्वल टू गामा वुड बी इक्वल टू R ओवर गामा -1। तो गामा का वैल्यू 2 मतलब CV का वैल्यू R। तो यहीं पे अगर मैं CV का वैल्यू R सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो RT/m मतलब P/ρ, P is over RT/m ना। तो CV को R सब्स्टिट्यूट करूँ तो RT/m becomes P/ρ ना। तो let me just substitute it here itself, RT/m and P/ρ plus RT/m 2P/ρ हो जाएगा ना, because this itself is P/ρ,
तो यहीं पे कर रहा हूँ सब कुछ, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। दिस शुड बी इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वंस अगेन यहाँ पे 2 P2 बाय रो 2 आएगा। अब GH का टर्म आएगा, हाइट H पे है ये, प्लस V2 स्क्वायर्ड बाय 2, ठीक है। ये CVT बाय M तो मैंने P बाय रो के साथ कंबाइन कर दिया। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट इज H, बट फॉर दैट वी नीड टू ऑल्सो नो P2 नहीं पता, रो 2 नहीं पता, V2 नहीं पता, V1 नहीं पता, ये 4 चीजें अपने को निकालना है, देन वी कैन फाइंड आउट H। सो फॉर दीज 4 क्वांटिटीज क्या क्या चाहिए मुझे, P2 रो 2। सो P2 से शुरू करते हैं। P2 के लिए एडियाबैटिक बोला ना, डू वी हैव अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, यस एडियाबैटिक बोला हुआ है, तो कैन आई राइट एडियाबैटिक का तो एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन नहीं पता होगा तो जस्ट क्विकली डिराइव भी कर लेता हूँ। PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट तो पता है, तो वॉल्यूम इज nRT by P, सो T by P रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, P रेज टू 1 माइनस गामा, T रेज टू गामा इज अ कांस्टेंट। टेम्परेचर को दूसरे साइड ले लो तो P प्रोपोर्शनल टू गामा ओवर गामा माइनस 1, तो ये वैसे भी पता होना चाहिए, आई जस्ट क्विकली डिराइव्ड इट फॉर योर कन्वीनियंस। हाँ, तो कैन आई राइट P2 चाहिए ना, तो P2 by P1 शुड बी इक्वल टू T2 by T1 रेज टू गामा कितना है, गामा का वैल्यू 2 दिया है ना, तो 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिलेशन आ गया। आई नो P1, आई नो T1, आई नो T2, तो यहाँ से मुझे P2 निकल जाएगा। अच्छा, फिर क्या चाहिए मुझे, रो 2, तो रो 2 तो PM by RT, रो 2 मुझे पता ही है कि रो इज प्रोपोर्शनल टू P by T बिकॉज प्रेशर इज रो RT by M, रो इज PM by RT, तो हो गया ना, रो 2 बाय रो 1 इज इक्वल टू P2 बाय T2 इंटू T1 बाय P1, ठीक है। तो सब कुछ पता ना यहाँ पे, अभी P2 भी निकाल दिया तो फिर मेरा रो 2 भी आ जाएगा, रो 1 तो पता है, तो यहाँ से मुझे रो 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, V1 एंड V2 के लिए अल्फा दिया हुआ है, व्हाट वाज अल्फा, मास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास रिलेशन है, कैन आई राइट अल्फा एज रो 1 A1 V1, तो A तो एक्चुअली हाँ A1 भी दिया हुआ है, एंड ऑल्सो इक्वल टू रो 2 A2 V2। अब मुझे रो 1 पता है, A1 पता है, अल्फा पता है, तो V1 निकल जाएगा, रो 2 पता है, A2 पता है, अल्फा पता है, V2 भी निकल जाएगा। सब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर एंड यू विल solve for H. So you can do that on your own in the actual question given by JEE Advanced 2022. सॉल्व कर लेना, खुद को सेटिस्फैक्शन आ जाएगा कि तुमने एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन JEE Advanced वाला सॉल्व किया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, मतलब एक बार ये इक्वेशन समझ गया, फिर तो यार इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। दिस इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट्स इट, और तो कुछ लगाना नहीं, और अपना नॉर्मल गैस लॉस, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Now let's do a very nice question. So what normally happens is कि due to winds वगैरह air packets or air flows upwards and cools as it goes upwards. तो we are going to consider a situation of that कि मेरे पास एक packet of air है that rises slowly and adiabatically. तो पूछा गया है कि अगर ग्राउंड लेवल पे टेम्परेचर T0 दिया है तो व्हाट विल इट्स टेम्परेचर बी एट अ हाइट h। तो व्हाट इज गिवन इज मोलर मास ऑफ एयर एंड गामा ऑफ एयर, ये दो चीजें दिए गए हैं। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट h एज द पैकेट ऑफ एयर राइजेस एडियाबैटिकली एंड स्लोली। तो स्लोली है बेसिकली, यू कैन निग्लेक्ट द स्पीड, बाकी खुद ट्राई करो, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, जस्ट यूज दिस equation that I've showed you, try it out, ठीक है। So once again I'm going to use this, let me use this because gamma पता है तो direct CP पता, मुझे टेम्परेचर चाहिए ना, प्रेशर डेंसिटी वगैरह नहीं चाहिए मुझे, फाइनल मुझे टेम्परेचर ही चाहिए, तो लेट मी जस्ट यूज दिस फॉर्म। तो CP पहले तो कितना हो जाएगा, आई नो CV इज R ओवर गामा माइनस 1, करेक्ट, सो CP इज CV प्लस R, तो ये हो जाएगा गामा ओवर गामा माइनस 1 टाइम्स R, तो ये मेरा CP बन गया। नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस एट द बॉटम पोजीशन एंड एट हाइट h। तो बॉटम पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CP T0 बाय मोलर मास प्लस GH तो 0 है, प्लस V भी निगलेक्ट करना है अपने को, स्लोली बोला हुआ ना,
एंड हाइट h पे क्या आ जाएगा, CPT by m प्लस GH इज व्हाट आई वांट एंड स्पीड तो 0 है। हो गया बस, मुझे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ हाइट h चाहिए ना, तो देखो टेम्परेचर कितना आ जाएगा, m बाई सी पी से मल्टीप्लाई कर दो, सो T0 माइनस mgh बाई CP। देखो करेक्ट लिख रहा हूँ, और CP को क्या रख दूंगा, आई जस्ट कीप दिस, सो दैट्स इट, और CP मतलब गामा r टाइम्स गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा टेम्परेचर है, यू कैन सी टेम्परेचर डिक्रीजेस लीनियरली विथ हाइट, सो दैट इज द वे टेम्परेचर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। एंड कभी कभार दे आस्क यू टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब dt बाई DH इज ऑल्सो कॉल्ड लैप्स रेट। ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट, तो वो बस ये स्लोप हो गया h का, लीनियर है ना, ठीक है। आई होप यू वर ऑल्सो एबल टू गेट इट, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, जस्ट यूज दिस इक्वेशन, दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक एट अ कॉन्सेप्ट इन रॉकेट प्रपल्शन। देखो मेरे पास एक रॉकेट है यहाँ पे फ्यूल कंबशन होता है और फ्यूल जनरेट होता है विद सम स्पीड, इट लीव्स दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A1 एट टेम्परेचर T1, द फ्यूल इज आइडियल डायटोमिक गैस दिया हुआ है, एंड इट अंडरगोस एडियाबैटिक प्रोसेस, कुछ एक्सपांशन वगैरह होगा तो एडियाबैटिक अपन मान रहे क्वेश्चन में दिया गया। सो द गैस, द फ्लूइड गोस एंड एग्जिट्स द रॉकेट एट प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दिया गया। तो ये चीजें सब अननोन है, A2 P2 T2, यहाँ पर A1 T1, दैट इज द पॉइंट वेयर द कंबशन हैपेंस एंड द फ्यूल इज एंटरिंग दिस सेक्शन ऑफ द रॉकेट। स्पीड्स नहीं दिया है, नोटिस, और क्या पूछा हुआ है, फाइंड द थ्रस्ट फोर्स ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द फ्यूल। तो अपना जनरल यू रिलेटिव dm by dt जो हम लोगों ने वेरिएबल मास सिस्टम्स में पढ़ा है, वो कैलकुलेट करना है। सो फॉर दैट यू रिलेटिव मतलब रॉकेट के फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो what I'm going to do is I'll go to in the rocket frame, so let me just write it here। तो रॉकेट के फ्रेम में लेट से यहाँ पे स्पीड v1 है एंड यहाँ पे स्पीड v2 है, तो v1 v2 और अननोन्स, ठीक है, वो अननोन है हमारे पास, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेशर भी अननोन है, तो वो सब क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लेट्स यूज डायटोमिक गैस दिया, लेट्स यूज दिस, मुझे चाहिए क्या, फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी U रिलेटिव, तो वो V2 ही बन गया जिससे एग्जिट कर रहा है, दिस इज रिलेटिव टू द रॉकेट, V2 एंड V1 आर रिलेटिव टू द रॉकेट, U रिलेटिव dm by dt। सो dm by dt मतलब कितना मास निकल रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो तो मुझे आता है लिखने को, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो कैन आई राइट ρ2 इंटू A2 इंटू V2, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ρ2 A2 V2 स्क्वायर, और ρ2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P2m by RT2, तो m नहीं दिया है तो होपफुली कट जाएगा एंड तक, ठीक है। इसमें से क्या क्या अननोन है मेरे पास, V2 अननोन है और m अननोन है, m होपफुली कैंसिल हो जाएगा, V2 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, P2 पता है, T2 पता है, A2 पता है, सो बेसिकली आई नीड V2 एंड देन आई गेट माई थ्रस्ट फोर्स। ओके, सो V2 निकालने के लिए विच इक्वेशन डू वी हैव दिस इक्वेशन, सो आई एम गोइंग टू इक्वेट, कैन आई राइट, लेट मी राइट इट हियर, यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो, CP T2 by m यहां पर लिख रहा हूं एट द एग्जिट पॉइंट, h तो जीरो यार, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो छोड़ो, या तो आउटर स्पेस में तो g भी नहीं है, प्लस V2 स्क्वायर्ड बाई 2 एग्जिटिंग शुड बी इक्वल टू V1 वाला सिचुएशन, तो यहां पर वो कितना हो जाएगा, CP T1 by m प्लस V1 स्क्वायर्ड बाई 2। नाउ V1 के लिए कैसे लिखूंगा मैं, आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो कैन आई राइट ρ2 A2 V2 इज ρ1 A1 V1, तो V1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब ρ2 तो मुझे पता चल गया, P2m by RT2, वैसे ही ρ1 भी आ जाएगा, ρ1 कितना आ जाएगा, P1m by RT1, है ना, बट P1 पता है क्या, नहीं पता P1,
Can I find out P1? Has any information been given that I can relate P1 and pressure and temperature? Adiabatic. तो क्या रिलेशन है? We found out P2 by P1 earlier, अभी थोड़ी देर पहले देखा था. Adiabatic relation. Pressure is proportional to T raised to gamma over gamma minus 1. तो this will be T2 by T1. यही आया था ना अपने पास. और गामा मतलब कितना होता है डायटोमिक के लिए? 7/5. तो 7/5 डिवाइड बाय 7/5 माइनस 1 मतलब 2/5. तो ये 7/2 बन जाएगा. ठीक है. और ठीक है, तो ये ρ2 by ρ1 में ρ2 पता है तुमको, ρ1 पता है तुमको, दोनों प्रेशर के टर्म्स में ρ2 ρ1. तो वहां पर भी P2 by P1 आएगा, वो ये सब्स्टिट्यूट कर देना, हो जाएगा. तो बेसिकली V1 भी पता चल गया, V2 भी पता चल गया, एंड दैट्स इट. फ्रॉम दिस just substitute V1 in terms of V2 and get V2. I'm not solving the questions of variables है, I'm showing you the concept. तो V1 substituted in terms of V2, तो पूरा इसको solve करके V2 आ जाए. That's it. ये यहाँ पर डाल दो and molar mass cancel हो जाएगा, वो खुद कर लेना. ठीक है. Here we've made one small assumption actually. We've assumed the rocket का acceleration to be very small. Small मतलब small enough that there is no term of the acceleration of the rocket in this equation. यहाँ पर जैसे gravity लगता है, तो gravity does work which is expressed as this term, gh वाला term, potential energy, because gravity does work. वैसे ही rocket के frame में pseudo force can also do work, because rocket accelerate कर रहा है तो non inertial frame बन गया, तो pseudo force लगेगा. तो gas में pseudo force can also do work, तो उसका भी एक term आना चाहिए. नहीं लिखा मैंने. Basically, I've assumed throughout the question that the rocket acceleration is small. ठीक है. Okay, so if you don't know how to write Bernoulli's equation in fluids, incompressible fluid की बात कर रहा हूँ, जो standard पढ़ते हैं अपन JEE syllabus में. I mean, I hope you've already studied how to write Bernoulli's equation in a non-inertial frame and fluid, because इस पे एक question आया भी था JEE के, I don't remember which year, शायद 2012, सॉरी याद नहीं मुझे जेई का कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, बट आया था नॉन इनर्शियल फ्रेम में बर्नौलीस इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी बाय फ्लक्स निकालना था. सो आई होप यू नो दैट. इफ यू डू नॉट, just post it in the comment section, then I'll consider making a video on that topic, when the vessel is accelerating horizontally, vertically, in any direction. ठीक है. ओके, सो ये मेरा V2 आ गया, हो गया. बस V2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके थ्रस्ट फोर्स निकालना है. आई होप यू अंडरस्टूड द assumption that the rocket acceleration has to be small enough that we don't get any term for that in our modified Bernoulli's equation. Okay. लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's do a very nice question. एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल फैन बोल या कुछ तो डिवाइस है, which is taking in air at pressure P1 and temperature T1 and expelling air. It is pushing out air with speed V2, pressure P2 and temperature T2. Notice that we have not been given the incoming speed of air. ठीक है. But cross sectional area A है. Cross sectional area A है throughout. And अंदर कुछ तो है, that is some device, fan बोल दो, something that is expelling the air at velocity V2, pressure P2, temperature T2. तो पूछा है इसको sustain करने में, मतलब in order to run this device, how much electrical power is needed. Molar mass m भी दिया गया है. Do you need anything else? No. ठीक है. तो क्वेश्चन तुम ट्राई करो कि how much power is to be supplied to run this fan, and we'll assume there is no energy loss, मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ लॉस नहीं है इनसाइड द डिवाइस, कुछ हीट लॉस वगैरह नहीं हो रहा है फ्रिक्शन वगैरह के कारण. ठीक है. और एयर का सीपी भी दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस. सीपी के टर्म्स में आंसर आएगा. ठीक है. सो फाइंड द पावर सप्लाइड इन ऑर्डर टू रन दिस डिवाइस एंड नो एनर्जी लॉस लाइक आई सेड. ठीक है, ट्राई करो, देन यू कैन टेक अ लुक एट माय सॉल्यूशन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ कांस्टेंट बिकॉज देयर इज सम एक्सटर्नल पावर और एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू द गैस. सो हाउएवर आई कैन से कि जितना रेट पे एनर्जी सप्लाई हो रहा है, दैट इज द चेंज इन एनर्जी. कितने रेट पे एनर्जी निकल रहा है माइनस कितने रेट पे एनर्जी एंटर कर रहा है, दैट विल बी द पावर सप्लाइड. वी हैव सीन दिस अर्लियर. सो कैन आई राइट पावर सप्लाइड वुड बी कितने रेट पे एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट मास, कितना एनर्जी निकल रहा है. कैन आई राइट CPT by m,
तो T मतलब T2 बन गया, और H हाइट अगेन सेम है, सेम लेवल पे, तो GH वाला टर्म आएगा नहीं, प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस कितना एनर्जी पर यूनिट मास एंटर कर रहा है, Cp T1 बाई m प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 multiplied by dm by dt, the mass flowing in per unit time. So this is the energy change per unit time. This is the energy per unit mass exiting, energy per unit mass entering. तो जो difference है, the change in energy per unit mass multiplied by the mass flowing per unit time. That is the power supplied. However, यहाँ पे V1 मुझे नहीं पता, so that I need to find out. I also need to find out dm by dt. तो V1 कैसे निकालूं? Continuity. Can I write रो वन A1 V1 शुड बी इक्वल टू रो टू A2 V2. अब A1 A2 तो सेम है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, दे आर बोथ इक्वल, है ना. तो रो वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, PM बाय RT. सो M बाय R भी कैंसिल हो जाएगा PM बाय RT में, तो मेरे पास आ जाएगा P1 V1 बाय T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 बाय T2, है कि नहीं. तो यहाँ से मेरे पास V1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, T1 बाय T2 टाइम्स P2 by P1 टाइम्स V2, ठीक है. V2 इज नोन टू अस, तो V1 मैंने V2 के टर्म्स में निकाला. और क्या चाहिए मुझे, dm by dt. तो dm by dt मतलब यही हो गया ना, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करो. कौन सा सिलेक्ट करूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, रो टू A2 V2, क्योंकि उसमें प्रेशर मुझे पता है P2. सो dm by dt इस रो टू A V2, एरिया तो A है, तो रो टू मतलब P2m by RT2 इंटू एरिया इंटू V2 हो गया. तो लेट मी जस्ट राइट दिस एज dm by dt कितना होगा, ये पूरा चीज़ हो गया. तो P2m बाय इंटू एरिया इंटू V2 डिवाइड बाय RT2, ये मेरा dm by dt हो गया, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग. तो Cp बाय में कॉमन ले लेता हूँ, T2 माइनस T1 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, तो V1 स्क्वायर ये हो गया. तो V2 स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, P2 स्क्वायर बाय P1 स्क्वायर हो गया. ठीक है, जस्ट चेक कर लो यार, सब कुछ कैलकुलेशन सब सही किया गया मैंने, मतलब सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह सही किया. आई होप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. आई होप यू आर ऑल्सो एबल टू गेट इट. सो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है इफ़ यू नो द इक्वेशंस दैट आर टू बी यूज्ड. अगर इक्वेशन पता ही नहीं तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. दैट वाज माय इशू विद द जेई क्वेश्चन. इफ दे हैड सेड कि सिलेबस में है तो ऑफकोर्स ये सब पढ़ा देता मैं, एंड वी वुड हैव गॉन अहेड. एनीवे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर लेक्चर. इस पे कोई भी और क्वेश्चन आया, यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू एट द टॉप. गुड नाइट.